Hello, Dr. Pushapdeep Singh Saluja. Hi sir, hi, how are you? Fine. And a podcast with you. Thank you. ਸੋ You're welcome. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਯੂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਮੀ ਔਨ ਯੂਰ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਯੈਸ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਤੇ ਮਤਲਬ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ really appreciable workshops really appreciable ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੀਪਲਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ Sure. Basically, Dr. Saluja, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत धन्यवाद. I'm highly grateful to you that you have invited me. थैंक यू जी. Okay. हम आपके दिल से, फेफड़े से और किडनी से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक बुलाया पॉडकास्ट के लिए. और ये एक्चुअली मैं भी चाहता था कि कोई मुझसे पूछे ऐसे, तो लकीली यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, तो आपने मुझे मौका दिया. राइट. बेसिकली डॉक्टर सलूजा, मैं 1 नवंबर 2019 को निकल गया था जब श्री गुरु नानक देव जी का 500 बर्थ ईयर था. तो उनसे इंस्पायर होके मैं निकला गड्डी लेके. ठीक है, रास्ते में स्कूल आया तो स्कूल विच जाके मैं कार मोड़ के गया. तो मैंने एक स्कूल में जाके लेक्चर दिया बच्चों को. वेरी गुड. तो वो स्कूल का नाम है डीएवी हमीरपुर सलसी. Some people call it Salasi. I still remember the principal was Dr. Vishwas Sharma of that time. Now he is in some different school of DAV. ਸੌਰੀ ਡੀਏ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਪੂਰੇ 올 ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਡੀਏਵੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਰਾਈਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. So when I met Mr. Vishwas, I said कि I'm a teacher, and he in 2 minutes, just in 2 minutes he said कि Mr. Sharma, I never allow any outsider, but I will never say no to you. Okay. And I had done a workshop with 2,700 students on the day of Basant Panchami in February 2020. Oh my God. Right. And before that, my sessions were all with the school visits and all. So actually, I had been given a duty by one of the institution of Shimla, that is Aspire IIT Medical, that is in BCS, Bishop Cotton School Chowk in Shimla. Okay. So they people conduct Brain of Himachal. So they have given me what do you call that, certificate distributions and all. And during that, I got an opportunity to interact with the students of DAV. After that, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. मैंने बहुत सेशंस करने शुरू किए. तो मतलब भगवान ने आपकी उंगली पकड़ ली और आप आगे चल रहे हो लगातार. हाँ, मैं इसका क्रेडिट मैं इसका क्रेडिट ऊपर वाले को तो चलो दूंगा ही. राइट. लेकिन ऊपर वाला तो किसी ने देखा नहीं है. लेकिन उसके रूप में मैंने वो प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वास शर्मा को देखा. और मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ सच लर्नड पर्सनालिटीज ऑफ आवर कंट्री. तो सर उसके बाद फिर चलता गया सिलसिला. मैं अकेला चलता गया, प्रिंसिपल सब जुड़ते गए और वर्कशॉप्स का सिलसिला शुरू हो गया. राइट. और वर्कशॉप का कारवा बनता गया. तो अपने आपने पूछा कि आपने सीखा क्या, एक्सपीरियंस क्या है मतलब आपके जो उसमें है मतलब सर. एक तो ये देखा, ट्रैवलिंग का ये देखा कि सबसे पहले तो मैंने ट्रैवलिंग का ये देखा कि जो स्ट्रीट फूड है सड़क के लेफ्ट राइट में, वहीं से खाना चाहिए. अच्छा, श्योर. वो इसलिए कि वो लोग एक तो उनको मतलब काम चाहिए, दूसरा वो फ्रेश दिखता है जो बनाते हैं. ओके. और
और एक तो मैंने ये सीखा, और दूसरा ये सीखा कि सड़क पे जब हम चल रहे होते हैं, तो जब कुछ लोग पंचर होता है उनका ट्रक वगैरह, बड़े बड़े पत्थर छोड़ जाते हैं, झाड़ियाँ उठाते नहीं है, खाते नहीं हो। तो पीछे से कोई रात को गाड़ी आए तो उसको हिट कर जाती है, एक्सीडेंट होता है। तो कोशिश कर लो कि अगर आपको दिखे आपके पास टाइम है तो साइड कर दें, साइड पर कर दो। या फिर एक मैसेज है उन लोगों को प्लीज डोंट। तीसरा, इन इंडिया कहते हैं ना, यू कैन पिस एनीवेयर Piss anywhere. बट यू कैन नॉट किस एनीवेयर। Okay. तो दूसरा देखा कि जहां देखते हैं सड़क पे हम जा रहे हैं कार में, पीछे से कोई बंदा आया तेज से गाड़ी चला के Oh my ओवरटेक God. करके फिर वो शुशु करना शुरू कर देता है, ये भी गलत ये है। भी गलत है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क भी एक भगवान का रूप है, देवता है। तो सड़क हमें अपनी मंजिल तक ले जाती है, तो सड़क के ऊपर थूके मत, गंदगी मत फैलाएं, और रिस्पेक्ट रोड्स एंड रोड रूल्स एंड ट्रैफिक सेंसेस। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा सर, ट्रैवलिंग में सबसे पहले मैंने ये सीखा कि वी मस्ट रिस्पेक्ट, और आई एम हाईली ग्रेटफुल टू आवर नितिन गडकरी सर के उन्होंने हर जगह बहुत, जहां भी जाओ तो दिखता है कि सड़कें हैं और खड्डा भरी सड़कें हैं। हाँ, टोल जरूर लगता है सर। जी। ये तो सभी तरफ है, टोल तो सभी तरफ है। हाँ जी, चलो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, फ्री बाइज नहीं होना चाहिए। राइट। अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लर्न की सर, कि कभी कभी कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल बड़े एरोगेंट होते हैं, तो उनको लगता है कि कोई मार्केटिंग वाले आए हैं, कोई डाटा वाटा लेंगे हमारे स्कूल के बच्चों को। नहीं, पहले वो जज कर ले कि कौन है इनका प्रोफाइल। अब जैसे मेरा प्रोफाइल गूगल पे दिखता है, विपिन शर्मा फिजिक्स, राइट। तो वो प्रोफाइल देख के जज कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। हाँ, स्कूल प्रिंसिपल अपनी जगह पे सही है कि उनके पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो सर ये तो एक्सपीरियंसेस हैं, पेशेंस सीखी सर, और ट्रैफिक जैम में कैसे अपने आप को कूल रखना ये सीखा। राइट। गाड़ी की माइनर मरम्मत करनी भी सीखी। ठीक है। और अपने ऊपर डिपेंडेंट होना सीखा। राइट सर। अब आता है एकेडमिकली क्या सीखा। ठीक है। तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे। ठीक है। स्टॉप करना भूल गया। तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे, यू वांट टू आस्क। प्लीज स्टॉप, भूल गया, मैं दिमाग से निकल गया मेरे। कोई बात नहीं, यू थिंक इट ओवर, नो इश्यूज, वी कैन डू इट। सो ये मैंने बहुत कुछ सीखा है सर यहाँ। एंड बाकी स्कूल्स में बच्चों से मिलता हूँ तो हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, दे आर गुड स्टूडेंट्स, राइट। बट वी नीड वेरी गुड टीचर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चे बहुत लाइक हैं, बट उनकी ग्रूमिंग एंड कंडीशनिंग चाहिए। तो ये सीखा। अब आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। चलो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप कुछ बताइए। ये नेचुरल डिस्कशन होती है। हाँ, जो दूसरा इसमें जो एक आप बात कर रहे थे कुछ दूसरे क्वेश्चन की भी हाँ, ये भी था, अभी मैं पूछ रहा था पहले आपसे, मेरे माइंड में स्किप कर गया आपके दिमाग नहीं, जो ये पॉडकास्ट होती है ना सर, या नेचुरल डिस्कशन, जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं हम, राइट, तो जो दिमाग में चल रहा है, चाय भी चल जाती है बीच में, राइट। तो हम कोई मतलब हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए बना रहे हैं, हम तो नेचुरल सी बात कर रहे हैं। आप इतने देर के बाद आए, तो जब आपने लायंस क्लब का ये पहना तो मैं भी इंस्पायर हुआ, तो मैं ये ढूंढ के लाया अपना लायंस क्लब। I was the youngest Lions Club president in Patiala, District 321F. District 321F, right. So, but now presently you are the TT Club president in Chandigarh. Rotary Club Chandigarh, of course. तो बाकी डॉक्टर साहब बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चे बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें बच्चों के जब क्वेश्चंस के आंसर कई बार आते नहीं, कई बार आते हैं, तो बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो जैसे फिजिक्स है, जैसे आप इतनी देर से है ना, आई थिंक 30 years फ्रॉम पास्ट। अरे 30 साल को तो मैं खुद को बताता हूँ लोगों को। तो उसमें फिजिक्स में क्या एक्सपीरियंस किया आपने लाइफ में, मतलब उससे क्या मतलब आपको सीखने को मिला, मतलब पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते, मतलब तो उसको कैसे आपने अप्लाई किया? अब पहले फर्स्ट अपनी लाइफ पर और फिर दूसरों को मतलब क्या मतलब सिखाया, अभी कैसे अप्लाई करना चाहिए? मतलब पहले तो
आपकी बात का मैं एक लाइन में भी आंसर करूंगा और राइट, फिर उसको खोल भी दूंगा। ओके, ऑल नेचर इज फिजिक्स, ओके, ये आंसर हुआ। अब आती है बात फिजिक्स की। मुझे फिजिक्स बहुत कम समझ आती थी, हुँ, तो मतलब नहीं समझ आती थी। और +1 तक जितने भी टीचर्स मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे, तो उनको लेके मैं हमेशा मतलब आ, मतलब मैं टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, देखो दिल से करता हूँ, राइट सर, ठीक है। बट नहीं मजा आता था। हम सुनते थे यार, एक सर है हुँ, मोदी कॉलेज में, वो पढ़ाते हैं बड़ी अच्छी फिजिक्स, हुँ, प्रोफेसर सुरेंद्रलाल। या, तो उन्होंने हमें +2 में पढ़ाया, प्री इंजीनियरिंग में। हुँ, तो उस शख्सियत से मुझे फिजिक्स समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे मदर का स्कूल होता था, तो उसमें बोर्ड तो होती थे क्लासेस बोर्ड में, तो होते थे चौक क्लास में, लेके हुँ, मैं प्रोफेसर सुरेंद्रलाल की नकल उतार के खुद को पढ़ाता था। ऐसे he used to do, you see, I am Professor Lal, I'm going to teach you the concept of the electromagnetic induction. Whenever there is a relative motion between the magnet and the coil, an induced EMF is set up. The induced EMF lasts so long if there is a relative motion is equal to minus ddt of phi. Phi is called flux. When flux is changing, then induced EMF is set up. And this was given by the Lenges, and he took 6 months to find it out, and it was the reverse of the Hans Christian Ørsted. So I experiment that current is passing, there is a magnetic field, why not the reverse is true? So like that, तो मैं उनकी नकल उतारने लग गया। तो सर आप यकीन करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स का मैं नहीं जानता था ये हो रहा है मेरे साथ। हो रहा है, मेरे अंदर सर सर का फील आने लगा, और मैं खुद को सर बन के जब पढ़ाता था, तो कई चीजें मैं खुद को ऐसे बताता था जो एज ए टीचर ही बता सकता था। बस आप फिजिक्स टीचर बन गए, एक तरह के, एक तरह का मैं मतलब मैं मेरे अंदर उनसे इंस्पिरेशन आती गई, और मैंने फिजिक्स को रिलेट करना शुरू किया विद द डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ, राइट, हाँ, तो जब मैं डे टू डे लाइफ से रिलेट करने लगा, तो मुझे फिजिक्स और इंटरेस्टिंग लगी। और आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग में मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई, मैथ्स भी पढ़ाया, ओके, केमिस्ट्री भी पढ़ाई। राइट, तो राइट, बाद में स्टूडेंट्स को लगा कि सर आप एक सब्जेक्ट पढ़ा लो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन लगते हो। तो मैंने फिजिक्स शुरू की, तो फिर उसके बाद स्काई वाज द लिमिट। आई हैव गिवन 7 टाइम्स फर्स्ट रैंक इन इंडिया। तो आप गूगल में जाइए, विपिन शर्मा फिजिक्स देख सकते हो, तो उसमें विद प्रूफ एंड फैक्ट्स एंड प्रूफ एंड फिगर फैक्ट्स, पढ़ा है। पर मैंने अपनी लाइफ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने अपनी लाइफ में उल्टा करने की कोशिश की, जी। मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स बट जैक ऑफ नन। नहीं नहीं सर, ये आपका बड़ापन है, यू आर द बेस्ट टीचर्स। देन आफ्टरवर्ड्स लाइक सीखते गए सर। सीखते, राइट, जी राइट, राइट, सो ऐसे इसी से ही मतलब, सर, देखिए पॉडकास्ट है ना, हाँ, एक गाना है देवानंद जी का, वो जरूर जरूर जरूर, नहीं नहीं वो मैं लाइन सुनना चाहूंगा, आपसे सुनना चाहूंगा, वो सुनना लाइन चाहूंगा, लाइन कहते हैं ना, दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दे दें। दे, तो आज बोलो जो बोलना, सारा खुल के बोलो। नहीं बस यही है, मतलब मैं यही बस आपसे मतलब एक्सपीरियंस मतलब आपका शेयर करना चाहता था कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, या आपसे पूछना चाहता था, सॉरी, भी क्या जैसे ट्रैवलिंग में क्या एक्सपीरियंस है ना, जैसे फिजिक्स पढ़ाते हुए क्या एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, और भी वैसे आपने तो वैसे बहुत ज़्यादा और भी एक्सपीरियंसेस किए होंगे लाइफ में, कुछ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे आपको अनलिमिटेड मतलब जॉय मिला हो, मतलब जिससे आपने, जिसको आप सिखाना चाहोगे सभी दुनिया को, मतलब फिजिक्स और ट्रैवलिंग के अलावा भी कोई ऐसा मतलब जो इंपॉर्टेंट कोई लाइफ में आपके मतलब हम्म, गुजरा हो, मतलब कोई ऐसा बिल्कुल एक्सपीरियंस लाइफ का मतलब। बिल्कुल। बहुत दुनिया बड़ी खूबसूरत है, बड़े अच्छे लोग मिलते हैं सड़क पे। जब बिल्कुल बिल्कुल, गांव में जाता हूँ, व्हेन आई एम गोइंग इनटू द विलेज एरिया, तो आई मीट ओल्ड पीपल, दे आस्क मी फॉर लिफ्ट एंड ड्रॉप, एंड आल्सो मींस देन दे पुट क्वेश्चंस दैट के पीबी नंबर है आपका, तो आप पंजाब से कहाँ कहाँ पंजाब घूमते से हो? कहा था, यस यस, मैं कहा हाँ। तो उनके मन में पंजाबीज के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। दे राइट, लव आवर गुरुज, ऑल गुरुज। उनको पता है सुप्रीम सेक्रीफाइसेस ऑफ गुरुज। दुख की बात है कि हमारे पंजाबियों को कम पता है, उनको पंजाबी ज्यादा कम पता है। पता है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोग राइट, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है उनकी कंडीशनिंग करने में। तो हमें
बहुत अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है जो राइट स्कूल्स में कुछ टीचर्स तो बाय चॉइस हैं, कुछ टीचर्स बाय फोर्स हैं, कुछ टीचर्स इन ट्रांजिशन है। तो कुछ टीचर तो इसलिए बन गए कि उनको कुछ काम नहीं मिला, वो टीचिंग में आ गए, लेकिन जैसे ही वो टीचिंग में आए तो उनको इंटरेस्ट बना, वो टीचिंग करते करते अच्छे टीचर बन गए। कुछ उनमें से छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का शोषण भी है कि उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, और जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश में। अब देखो ना, अगर आप बोलते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर राइट हाइपोटेन्यूज, राइट राइट ठीक है, तो अगर आपको 100 रुपए देंगे, तो अगर मैं बोलूँ नहीं जी आपको तो मैं 10 रुपए दूंगा, तो आप फिर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही बोलोगे। उसमें राइट राइट उसमें कुछ कम ज्यादा तो कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह इसलिए रहे हैं टीचर जो है वो अंडरपेड है, उनकी उनकी उनको उनको दे शुड बी पेड वेरी प्रॉपरली। बाकी बच्चे बड़े लाइक हैं, और कई टीचर्स पेन्स नहीं लेना चाहते। वो बच्चे, मैंने एक चीज नोट किया है, बच्चा वही इंडिया में छा रहा है जो खुद से पढ़ रहा है। खुद से पढ़ रहा राइट यस। नहीं फिर इसका मतलब ये है कि हमारी हम जैसे टीचरों की कोई वैल्यू नहीं है मतलब नहीं सर, है। जो टीचर्स ने अपनी वैल्यू बनवाई है उनकी है, जो उनकी है हाँ, वो उसी को ही मैं टीचर बोलता हूँ सर। राइट टीचर कौन है? जब वो क्लास में जाता है तो उसके अंदर एक स्टूडेंट छुपा होता है, जैसे ही वो क्लास में पढ़ा रहा है वो अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। अगर वो अंदर का स्टूडेंट सेटिस्फाइड है और बाहर के स्टूडेंट उससे सेटिस्फाइड है तो वो अच्छा टीचर है। बिल्कुल नहीं तो उसको बोलता है तेनो टीचर किने बनाया, पूत नहीं दिया। पूछ नहीं दिया ठीक है अच्छा सर मेरे 10 मिनट रह गए पॉडकास्ट खत्म होने के सो मैं आपसे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ आप उसके बारे में मुझे बताइए वो जो मेरा क्वेश्चन है आप किसको प्रेफरेंस देते हो ज़्यादा जॉब को प्रेफरेंस देते हो कि बिजनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो बिजनेस ज़्यादा बढ़िया है कि जॉब ज़्यादा बढ़िया है आजकल के सिनेरियो में लोगों का ट्रेंड है जो जो बच्चों का ट्रेंड है मैक्सिमम जो बच्चों का ट्रेंड है कि उनके जो एल्डरली जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ये सिखा रहे हैं नहीं बेटा जॉब करो जॉब सिक्योर है बिजनेस का कोई पता नहीं है आज चल रहा है कल को खत्म हो जाए पर जो जॉब है वो लगातार चलती रहती है और स्टेबल रहता है कि किसी को घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती या कुछ भी ऐसे आपका क्या कहना है जॉब वर्सेस बिजनेस जॉब बेटर है कि बिजनेस बेटर है वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक एंड यू सर थैंक एंड आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, यू ओके जो नौकरी की बात है, अ, मैं एक लाइन बोलता हूँ कि नौकरी ना कीजिए, घास खोद लीजिए। ओके मतलब जो बंदा बहुत टैलेंटेड है, हम्म अगर वो नौकरी करता है हम्म तो उसका टैलेंट जो है ग्रूम नहीं करेगा। राइट मतलब क्या है कि वो एक ऐसा टैलेंटेड, मतलब मैं उसको बोलता हूँ कि वो एक ऐसा पौधा है जिसने 50-60 फीट जाना है हम्म और उस पे फल भी बहुत आने हैं, बिल्कुल लेकिन उस पौधे को हम गमले में लगा देते हैं ओह, तो वो बनसाइज बन के रह जाएगा। वन साइज में मेरे अकॉर्डिंग, अगर सरकमस्टांसेस बंदे के पास बिजनेस के लिए नहीं है, वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी बिजनेस के लिए एमएसएमईज डाल दी हैं, डाल दी बिल्कुल बिल्कुल प्रोजेक्ट्स डाल दिए, लेकिन अगर इसके पास इनिशियल पैसे नहीं है तो वो पहले थोड़ी देर जॉब कर ले जहाँ पर उसको अपने स्किल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। राइट फिर उसके बाद अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो बिजनेस कर ले। बिजनेस बिजनेस इन द सेंस दैट के जो उसको अच्छा लगता है, स्टेप वाइज। बट कॉन्फिडेंस जिसमें बहुत ज्यादा होता है वो नौकरी कभी नहीं कर सकता, नौकरी का वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा। उसको लगेगा यार ये बंदा जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है सिर्फ इसमें और मुझ में एक ही फर्क है, इसके पास पैसे, मेरे पे- पास पैसे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल तो ये मेरे को पे कर रहा है तो मैं इसका पेट हूँ। लेकिन या फिर ऐसे कह लीजिए जिसके अंदर लर्न पर्सनैलिटी है जिसके अंदर स्किल्स की बहुत भरपूर मात्रा है जिसके अंदर है ना वो मुझे लगता नहीं है कि वो जॉब के लिए बना है अकॉर्डिंग सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि उसको बिजनेस ही करना चाहिए अगर उसके अंदर स्किल बहुत हाई लेवल का है मतलब और टैलेंटेड है हार्ड वर्किंग है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस लोगों को रोजगार देना चाहिए नहीं बिजनेस का मतलब देखो, बिजनेस की डेफिनेशन एजुकेशन में मैं बता रहा हूँ क्या है। हम्म मैं एक टीचर हूँ, हम्म मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। राइट अब मैं सक्सेसफुल हूँ एज एन इंडिविजुअल टीचर, राइट लेकिन अब इंडिविजुअल टीचर टीचर टीचिंग का जो सिनेरियो नहीं है, हम्म अब नहीं, मतलब था एक दौर में खत्म हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल तो ग्रुप टीचिंग का आया, ब्रांड्स आए, अब उल्टा होना शुरू हो गया है।
हम्म, अब जो कोचिंग्स हैं, जो ब्रांड हैं, उनका दौर खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा, बिल्कुल। वो एक शायर लुधियानवी जी ने बोला ना कि उल्फते चाहते शोहरतें हम्म, हमेशा नहीं रहती दोस्तों। हमेशा नहीं रहती दोस्त। उल्फते चाहते शोहरतें हमेशा नहीं रहती दोस्तों। मैं जहाँ हूँ वहाँ कोई और था, ये भी एक दौर है, दौर वो भी एक वो दौर था। जैसे हर चीज का एक दौर आता है, दौर आता है। कभी किसी का, कभी किसी का, कभी हाँ, किसी कभी का। तुमने किसी को हम्म, फांसा, कभी मैंने किसी को फांसा। सही बात है, ये सही बात प्यार है। में सौदेबाजी तमाशा है तमाशा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ਪੰਜਾਬੀ ਚ आपने। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ। करीब होती थी। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ गोइंग टू वर्क ऑनलाइन, राइट? राइट राइट राइट। तो यू विल रॉक। एंड मेन चीज तो ये है कि मतलब टीचर्स को भी पैसे चाहिए जी। बिल्कुल है बिल्कुल उसके वो पता नहीं कितना, मतलब देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, और हमारे देश में मेडिकल को और एजुकेशन को सेवाएं बोलते हैं, सेवाएं बोलते हैं। बिजनेस नहीं बोलते। हम्म, लेकिन भाई, जब हम एक टीचर हैं, सेवाएं करके निकल गए, राशन वाले के पास बोले भाई मैं टीचर हूँ, सेवाएं देता हूँ, तू भी दे दे, बोलेगा लाला जी पैसे छोड़ के जाओ। पैसे जोड़ दिया। हैं, बस में ट्रक में एक पेट्रोल डलवाओ गाड़ी में, तो वो हम्म, कहेगा जी भाई मैं टीचर हूँ। टीचर। कि फिर बताओ मैं क्या करूँ? क्या तो बोला यार मैं टीचर हूँ तो मैं सेवा देता हूँ सेवा फ्री, देता तू भी दे दे। बोलेगा इतने नहीं चलती गल, तू पागल है। हाँ। सो मनी इज इम्पॉर्टेंट टूल, हम्म, एंड जहाँ मनी इन्वॉल्व होती है तो हम कह सकते हैं बिजनेस है। बिजनेस है, बिल्कुल सही कहा। तो गिव एंड टेक है। हाँ, जो बच्चा पढ़ता है, अब कई बोलते हैं जी तुम टीचिंग सेवा दो। हम्म, जो बच्चा पढ़ता है कल को उसको भी तो करोड़ों का पैकेज मिलता है। हम्म, उस जब वो करोड़ों का पैकेज हासिल कर रहा है, तो टीचर शुड बी पेड हैंडसमली, बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल। पे देना चाहिए। और पूछिए सर। सो बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने बहुत कीमती समय निकाल कर हमारे को टाइम दिया। तो इसी से एक बात और लास्ट जो मैं कहना चाहता हूँ, ही इज़ ए लर्न पर्सनैलिटी इन फिजिक्स, ही टीचेस फिजिक्स वेरी वेल, टॉपर एंड फेमस इन ऑन ऑल द अर्थ, राइट सर? अनर्थ हो गया ये तो। अर्थ नहीं हो गया, सही है। इंटरनेट की दुनिया सर, आपने कहा है इंटरनेट की दुनिया है, तो इंटरनेट पर अगर आप पूरे वर्ल्ड पर बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर अर्थ ही होगी ना सर। अर्थ पर आप टीच कर रहे हो, वेरी वेल, एक्सीलेंट टीचर। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी ने ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ाना हो, तो ये बहुत फिजिक्स के बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं, वो भी 30 ईयर से। तो मैं चाहूंगा ये अपना नंबर बोलेंगे और हम लिख भी देंगे नीचे, पर ये अपना नंबर बोलेंगे। सर अपना नंबर बोलिए प्लीज सर। 9814121996, 9814121996। बट डॉक्टर सलूजा, या सर। आपने मुझे एक्सक्लूसिवली पॉडकास्ट के लिए रिकॉर्ड किया आज, और मुझे ये शायद मेरी लाइफ का सेकंड पॉडकास्ट है। पहला पॉडकास्ट मेरा एमी गॉड में किया था कुल्लू में, ओके सर। बट वो आउटडोर में हुआ था। ओके। तो हम लोग वो मेरे साथ पूरा दिन गाड़ी में रहे, तो राइट सर। उनको कुछ अच्छा लगा होगा तो ऑब्जर्व करते रहे। राइट तो सर। वो भी है। और अगर आप मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप मुझे जरूर दें, और मैं अपने श्योर श्योर अपने श्योर चैनल पे भी इसको लाइव कर सकूं। श्योर श्योर ठीक है, श्योर श्योर, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच, थैंक यू सर, फिर मिलेंगे। राइट सर। ओके सर।